people, welcome to Prep Elevate. There are 2 videos already up on the channel for decision making. I hope you've watched them and this is the third one. So I'm taking up this question from ZAT24. Okay, same pattern है, एक core question है, फिर 3 associated questions है और हम questions को solve करेंगे. क्या हमारा मंत्र था? Win-win situation create करना है for all the stakeholders involved and ethical रहना है अपने practices में. No extreme steps as far as possible. ठीक है, we will avoid confrontations, we are going to avoid like tarnishing people's images and stuff. ये कभी भी ऐसे extreme decisions हम लेने की कोशिश नहीं करेंगे. ठीक है, हम prevent करेंगे ऐसे decisions को. अभी देखते हैं. ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको. Mr. Singh lived in a sprawling housing society. Sprawling is as in luxurious. वो देखते ही जिनका घर आपको लगता है ना कि काश ये मेरा घर होता, वैसा ही घर था मिस्टर सिंह का, स्प्रॉलिंग. ठीक है, अभी नेक्स्ट. He employed 2 part-time domestic helps, विमला एंड शारदा. तो 2 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया है एज डोमेस्टिक हेल्प. एक का नाम है विमला, एक का नाम है शारदा. विमला वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग, तो विमला का काम है क्लीनिंग का. ठीक है, एंड क्लीनिंग एंड डस्टिंग. शारदा took care of cooking. So Sharda took care of cooking, Vimla took care of cleaning and dusting. ठीक. Once Sharda fell ill and consequently took leave for 3 days. तो शारदा कौन सा काम करती थी? शारदा कुकिंग का काम करती थी. She fell ill and she took leave for 3 days. ठीक. When Sharda returned to work, she learned that Mr. Singh's gold ring, a gift from his mother, was missing. Okay, something serious has happened while Sharda was not present. So Sharda fell ill and she took leave for 3 days. When she resumed work, she learned that Mr. Singh had lost his gold ring. And obviously gold as a metal is precious, but यहाँ पे एक sentimental value भी attached है. It's a gift from his mother, so obviously even more precious to him. So वो he's lost it, Mr. Singh. ठीक है, अभी देखते हैं. Suspecting theft, Mr. Singh had terminated Vimla. Okay, so जब शारदा काम पर नहीं आ रहे थे, उस बीच में एक theft हुआ है. Like Mr. Singh felt that it's a theft because he was not able to locate, not able to find his ring. And since Sharda was not there, he had 2 domestic helps, so automatically all the blame it fell on Vimla, and he terminated. Mr. Singh terminated Vimla. Mr. Singh asked Sharda to take additional responsibility of cleaning the house. So obviously, he needed somebody to help him with the cleaning and dusting bit also, which Vimla used to do earlier. So Mr. Singh asked, Sharda that can you take up the additional responsibility along with cooking, along with an offer to double her salary. Okay, so monetary benefits he is providing definitely, that I'm going to double your salary. So in addition to cooking, can you also take up the responsibility of cleaning and dusting? Okay. Sharda accepted the offer as her previous 2 jobs were lost due to frequent health-related absences. So Sharda, she accepted the offer because she had lost 2 jobs. She was not keeping well, so she was not very consistent with it. So she had lost 2 jobs, and because of her absence, so now this was a relief that she could work in the same house and earn double than what she used to earn earlier. So it's a good deal for her, right? She was struggling to make ends meet, and this offer would go a long way to help her. So obviously, उसके लिए तो ये एक savior वाला offer है. ठीक है? Till now, it is not established that Vimla had stolen the ring, but somehow situations implied, or that is how Mr. Singh understood it to be, that Vimla had stolen the ring. But कहीं पे भी ये justify नहीं हुआ है अभी तक. ठीक है? अभी देखते हैं. Next day, while cleaning under the dressing table, Sharda found the gold ring. देखो तो golden ring तो घर पे ही है. ठीक है, बट शायद किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों की नजर नहीं जाती है फ्रीक्वेंटली, तो वो मिल नहीं रही थी मिस्टर सिंह को. तो उन्हें ऑटोमेटिकली लगा कि ये विमला का काम है फिर, एंड उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया वर्क से. बट एक्चुअली रिंग उनके घर पर ही थी. ठीक है, जो अभी किससे मिली? शारदा को मिली. ठीक, अभी शारदा रिमेंबर शी इज ऑल्सो डूइंग क्लीनिंग एंड डस्टिंग. शी फाउंड द रिंग. Overjoyed,
Mr. Singh expressed his gratitude by presenting Sharda a reward of 1000 rupees. So Mr. Singh is overjoyed. Remember, the ring also had a sentimental value. It is a gift from his mother. So definitely he's overjoyed. And as a reward, he presents 1000 rupees to Sharda, that, like, thank you for finding my ring. However, he made no mention of reinstating Vimla. अभी विमला को तो सिर्फ हमने ऐसे ही जो हमें लगा था ना, शक के बेसिस पे निकाल दिया था, कोई एविडेंस नहीं था हमारे पास। अभी रिंग हमें वापस मिल गई है, बट एक भी बार मिस्टर सिंह ने ये नहीं कहा कि हम विमला को वापस बुला लेते हैं फिर, ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बस शारदा को 1000 रुपीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया एंड ही ऑल्सो थैंक्ड हर, बट ये ऑफर नहीं हुआ, नो मेंशन ऑफ री इंस्टेटिंग विमला। तो अभी तक ये सिचुएशन है। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, शारदा वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग whether she should inform Vimla that she found Mr. Singh's ring. Abhi Sharda, she is in that position where she is thinking that Vimla was dismissed, but in like wrongfully, right? कोई charges prove नहीं हुए थे, बस शक के basis पे उसे निकाल दिया गया था. Now Sharda has found the ring. She's thinking, she's contemplating, right? कि क्या मैं बता दूं Vimla को that I have found the ring? Which of the following considerations will best dissuade Sharda in sharing the information about the ring with Vimla? तो हमें क्या करना है, हमें ये कन्विंस करना है शारदा को कि नहीं, आप विमला को मत बताओ ये जो हुआ है। तो हम कौन सा ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें इट इज गोइंग टू डिसवेड शारदा। डिसवेड मतलब प्रिवेंट हर फ्रॉम डाइवर्जिंग या प्रिवेंट हर फ्रॉम शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद विमला। ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना है कि हमें शारदा को कन्विंस करना है कि ये जो रिंग आपको मिली है ये इंफॉर्मेशन आप विमला के साथ शेयर मत करो। अब किस कंडीशन में आप ये चीजें छुपाते हैं, जब आपको भी कोई रेपरकशंस का डर हो, राइट। शारदा ने कोई गलती तो नहीं की है, उसे रिंग मिली है, शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड शी जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, वो कुछ गलत नहीं कर रही है। बट फिर भी अगर आपको सही करने जा रहे हो बट ऐसा रेपरकशंस का कोई आपको चिंता हो, तब आप सही चीजें करने में भी थोड़ा कतराते, यू हेजिटेट अ बिट। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कुछ है या नहीं ऑप्शंस में। अभी देखो, whenever Sharda was absent, Vimla used to help her by taking over her responsibilities. फिर तो शारदा को ग्रेटफुल होकर डेफिनेटली बता ही देना चाहिए ना, हमें तो इसको उल्टा करना है, हमें तो चाहिए कि वो उसे ना बताए। ठीक है, बट अगर इफ विमला वाज सो हेल्पफुल टू शारदा एंड शी वुड हेल्प हर आउट व्हेन नीडेड, तो डेफिनेटली फिर शारदा को तो बता देना चाहिए। तो उल्टा जा रहा है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। Mr. Singh will probably terminate Sharda if he gets to know that she has revealed this information. अभी शारदा का सिचुएशन याद करो आप, she has to make both ends meet. She has not been keeping well, hence she has lost her job in 2 of her houses. Now Mr. Singh has been grateful to her and he's been really considerate and he's doubled her salary, given her extra responsibilities and also the 1000 rupees after finding the ring. So Mr. Singh ने अभी तक शारदा को बहुत ही हेल्प किया है, ठीक है, ही हैज बीन अ गुड एम्प्लॉयर, ही हैज गिवन हर द रिक्वायर्ड सपोर्ट आल्सो। तो अभी अगर शारदा के मन में ये डर है कि अगर मैं विमला को ये बता दूं, मिस्टर सिंह माइट जस्ट टर्मिनेट मी फ्रॉम माय सर्विसेज, तो क्या मैं बताऊंगी? ऑब्वियसली नहीं। शारदा की पोजीशन पे खुद के रख के सोचो, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स भी हैं, तो ये डिसवेड करने के लिए तो एक गुड चॉइस है दैट ऑब्वियसली आई वांट टू बी गुड, I want to, I want the truth to come out. It's not like I have something personal against Vimla. But अगर मेरा खुद का इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, how am I going to make both ends meet? Remember, win-win. सिर्फ विमला को रेस्क्यू नहीं करना है, शारदा को अपना भी तो सोचना है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन है? पढ़ के समझ में आएगा। शारदा इज नॉट कीपिंग वेल and Mr. Singh warned her that her frequent absences could lead to her termination. फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस की वजह से अगर शारदा टर्मिनेट होगी तो वो तो पर्सनल कॉज होगा, बट विमला को बताने के बाद अगर वो टर्मिनेट हो, हमें तो यहाँ विमला वाला सिचुएशन डिस्कस करना है ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखते हैं। विमला ऑलरेडी नोज शी हैज नॉट स्टोलन एनीथिंग, सो टेलिंग हर विल नॉट गिव हर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली विमला नोज इट, फ्रॉम डे वन विमला नोज इट। रिंग तो घर पर ही थी, बट उसने उसके हिसाब से कोई स्टेप्स नहीं लिया ना। तो अगर उसे पता भी है या मे बी शायद स्टेप्स लिया भी हो, बट उसकी बात किसी ने सुनी नहीं हो, ठीक है, तो अभी शारदा का कुछ करना नहीं करना यहाँ पे इट बिकम्स इममटेरियल, बट हमें तो शारदा के साइड से वो एक्शन चाहिए ना, कि क्या हम ऐसा शारदा को बोले कि वो आगे ये बात उसको ना बताए। इसमें तो ये तो विमला की अपनी स्टोरी है कि शायद उसे पता भी होगा, बट शारदा कहाँ है यहाँ पे? शारदा नहीं है इसमें। ठीक है, अभी देखो,
Had Vimla done her job properly, she would have found the ring and avoided this incident. हाँ, मे बी क्लीनिंग एंड डस्टिंग विमला की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर उन्होंने अच्छे से करी होती तो मे बी उन्हें रिंग मिल भी जाती, बट दिस इज वेरी सिचुएशनल, राइट? तो हो ही सकता है ना कि किसी वजह से आपसे वो चीज मिस हो गई हो, ठीक है, बट इस वजह से वो उसे ना बताया, दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, वी हैव अ स्ट्रॉन्गर रीजन हियर, कि अगर आपने विमला को कुछ बताया सो आपकी जॉब जा सकती है, आपको मिस्टर सिंह टर्मिनेट कर सकते हो, इज बीन वेरी गुड टू यू ओवर द लास्ट फ्यू डेज, राइट, इज बीन रियली गुड एज एन एम्प्लॉयर, तो ये आप सोच समझ के करो। तो कुछ रीजंस हियर एंड देयर, यू नो, मे बी आपको लग सकता है कि ई भी फेयरली सही है, डी भी है, बट बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्या है कि अगर आपने विमला को बताया तो आपकी जॉब जा सकती है, उस पर खतरा आ सकता है, आपका टर्मिनेशन हो सकता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। एंड Sharda is also not doing very well professionally. Remember, she had to make both ends meet. She's lost her job also because of her illness. तो उधर बहुत सोच समझ कर चलना है अभी। तो B is the right answer. ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। तो 2 months passed, 2 महीने हो गए उस रिंग स्टीलिंग इंसिडेंट को, रादर रिंग मिसप्लेसमेंट इंसिडेंट, राइट? स्टील तो हुआ भी नहीं था, घर पे ही था ना। एंड ओइंग टू शारदाज इम्प्रूव्ड हेल्थ, ओके, तो शारदा की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है, डेडिकेशन काफी अच्छा है शारदा का, स्टार्टेड वर्किंग इन 3 more हाउसेस, गुड गुड टाइम फॉर शारदा, राइट? तो हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया है एंड बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पे मिला है उसको। However, Vimla was dismissed from her jobs in 2 more houses, primarily due to the ring incident. तो विमला ऑब्वियसली मिस्टर सिंह के अलावा और हाउसेस में भी वो काम करते होंगे, और जैसे ये बात फैली ना दैट विमला हैज लेट्स से स्टोलन द रिंग, राइट, तो शी लॉस्ट वर्क इन 2 more houses, ठीक है। News of the discovery of the lost ring had not become public and Sharda wanted to help Vimla. तो विमला ने जो रिंग चुराई है ये बात पब्लिक थी, बट अब जो रिंग वापस मिल गई है ये अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, एंड 2 months have passed, ठीक है, तो ये बात अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, एंड शारदा शी हैज एन इंटेंशन टू हेल्प विमला, she wants people to know that this is not right, Vimla has not stolen the ring, it was there in the house, and because of some misunderstanding, right, the entire incident panned out that way, she wants to help Vimla. शारदा इज कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर द पॉसिबल एक्शंस, तो उसे तो हेल्प करना है विमला का। किस तरह से विमला की हेल्प हो सकती है? किसी तरह अगर हम ये बात यू नो पब्लिक में हम इससे ले आ पाए कि विमला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लाइक there's no like you know she's of good character, of good standing and she's trustworthy, तो प्रॉब्लम सॉल्व, राइट, शी विल बी एबल टू हेल्प विमला, एटलीस्ट उसकी तरफ से तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। तो अभी देखते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू हेल्प विमला बाय शारदा। शारदा क्या ऐसा करे, बेस्ट क्या ऑप्शन है उसके पास टू हेल्प विमला? Divulge to Vimla's employers in the housing society that she has found the ring, great, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स को वो इन्फॉर्म कर सकती है जिन्होंने उनसे घर से निकाला है, विमला को काम से निकाला है रादर, कि यू नो दिस इज नॉट विमला's fault, we found the ring, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक हुई नहीं है ना, इसकी वजह से उसे रेपरकशंस फेस करने पड़ रहे विमला को, तो डाइवर्ज करना इज ऑलवेज अ गुड चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, confront Mr. Singh about concealing the discovery of the lost ring from the housing society residents, गलत, कॉन्फ्रंटेशनल बिहेवियर में नहीं जाना है, एक्सट्रीम स्टांस नहीं लेना होता है, you can't confront your employer and charge that why didn't you make this information public, conceal करना मतलब hide करना, you are responsible for your action, you can't force somebody to a particular course of action कि ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है, आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, और विन विन क्रिएट करना है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं जाना है, कॉन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करना है एज फार एज पॉसिबल, मिनिमल रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं, quit the job at Mr. Singh's house and ask him to consider offering that job to Vimla, no, sacrificial काम नहीं करना है, उसे भी जॉब की जरूरत है, शारदा also needs a job, she was finding it difficult to make both ends meet, she just started seeing good days, तो अपना वो चीज यू नो लाइक why would she destroy her own goodwill, quit the job and create hassle for herself and offer that position to Vimla? No, that's not right, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये sacrificial courses of actions are never you know permanent and they don't work, they are never the right answers, win win, सारे स्टेक होल्डर्स का कुछ तो भला होना चाहिए आपके कोर्स ऑफ एक्शन से, आप अपनी पोजीशन किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, दैट्स नॉट राइट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन्फॉर्म विमला that ring has been found
and advise her to demand compensation from Mr. Singh for tarnishing her image. No, obviously inform आप कर सकते हो विमला को, she has the right to know that she is not at fault, which probably she already knows. She knows she has not stolen the ring, but now they have found it. That's good piece of information for her. But आप किसी को instigate नहीं कर सकते to go against her employer that why don't you demand compensation. No, that's an extreme course of action. ये नहीं हो सकता. आप अपने तरीके से विमला को हेल्प करना चाहते हो, बट यू कांट इंस्टिगेट विमला टू टेक एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सिंह. दैट्स नॉट राइट. ठीक है, अभी देखते हैं. इन्फॉर्म एज मेनी डोमेस्टिक हेल्प्स इन द हाउसिंग सोसाइटी एज पॉसिबल दैट शी हैज फाउंड द रिंग. बट इससे डायरेक्टली ना विमला को कोई हेल्प नहीं होगी. ऑब्वियसली पीपल विल गेट टू नो, लाइक डोमेस्टिक हेल्प्स विल गेट टू नो, बट इससे स्ट्रॉन्गर चॉइस है ना अगर हम एम्प्लॉयर्स को इन्फॉर्म कर दें, बिकॉज अल्टीमेटली काम पे तो उन्हें रखना है, एम्प्लॉयर्स को रखना है. ठीक है, तो आपके जो बाकी हाउस हेल्प्स है सोसाइटी में, उनका जानना आपके लिए बेनिफिशियल है, नो डाउट. बट स्ट्रॉन्गर बेस्ट चॉइस क्या होगा कि एम्प्लॉयर्स ये चीज जाने, जिन्होंंने उन्हें काम से निकाला है, वो ये चीज जाने, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज हो तो वो विमला को ऑफर कर सके. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. लास्ट सेट देखते हैं, है ना. इस ओके, चलो ये देखते हैं. The news of the discovery of the lost ring eventually became public. अच्छा, good days. तो finally अब सबको पता लग गया कि ring was lost and it was not stolen. The domestic helps in the society were chagrined by the treatment. Chagrined is, strong disappointment when you face humiliation or when you are defeated. फीलिंग समझो आपको कि आपने कोई गलती की ही नहीं है, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, एंड देन योर जॉब इज टेकन अवे. This humiliation, that disappointments, that is a different sense of dejection that you face. ठीक है, तो वही, and all the house helps, they were like really they were not taking it well, that why, like every time something goes wrong, why are we blamed. ये होता है ना. So they were like chagrined by the treatment meted out to Vimla. They were not really taking it well, and the fact that the news of the discovery was not made public immediately. So two things. फर्स्ट, बिना एविडेंस के विमला के ऊपर क्वेश्चन किया गया, उनकी जॉब ले ली गई. सेकंड, जब रिंग मिल भी गई उसको इमीडिएटली पब्लिक नहीं किया गया, राइट. सो इट वाज लाइक कंसील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दे आर chagrined with it, how the situation was handled. They wanted to ensure that they would not get targeted every time something goes missing. Obviously corrective course पे action पे वो आना चाह रहे हैं अब, that every time something goes missing, it is very feasible to blame the house helps then. तो कभी भी कुछ भी गलत होगा तो हमारे ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे विमला के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है. तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू create that bubble of protection for them, that if they are not at fault, they should not be made to look like at fault. They are trying to safeguard themselves for future such incidents. So which of the following policy options will best minimize the chance of employers suspecting their domestic workers of theft in the future? बहुत डे टू डे लाइफ में इसको समझने की कोशिश करो. कब आपका शक मिनिमम होता है? जब आप तसल्ली कर लो कि उसने ऐसा नहीं किया है. When you have evidence, जब आप तसल्ली कर लो तो आप उस पर शक नहीं करते हो. ठीक है, तसल्ली आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको किसी पे डाउट है, कि आपके किसी फ्रेंड पे डाउट है, दैट एवरी टाइम ही स्टील्स माय पेंसिल्स, बहुत ही प्राइमरी स्कूल, हाउ डू नो दैट सम ही इज नॉट स्टोलन योर पेंसिल? तो क्या करते हो आप? स्कूल के पहले आप, ऐसा होता है ना, उसका पेंसिल बॉक्स एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं मेरा पेंसिल उसके पेंसिल बॉक्स में तो नहीं है. तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि अच्छा, घर जाने से पहले अगर एक बार हम चेकिंग कर ले तो हम कन्विंस हो जाते हैं, अच्छा फॉर द डे इट्स फाइन. ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे भी. हाउस हेल्प को चाहिए कि हर बार जब कोई चीज स्टील हो तो हमारे ऊपर ब्लेम ना आए, और उनके ऊपर ब्लेम तो तब आता है ना जब तसल्ली नहीं होती है. सो द थिंग कम्स टू लाइट लेटर, एंड तब तक उन्हें लगता है कि तब तक तो इन्होंने जो सामान चुराया होगा वो तो अभी मिलेगा भी नहीं, एंड दे वुड हैव लाइक डन देयर वेज विद इट. ऐसा होता है. तो क्या हम कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो शक है ना, दिस डाउट, ये कम हो? तो बेस्ट मिनिमाइज द चांस ऑफ एम्प्लॉयज सस्पेक्टिंग द डोमेस्टिक वर्कर्स. अभी देखते हैं. The domestic workers will undergo a daily search by the security guards when leaving the society. Very good choice. अगर रोज चेकिंग हो रही है तो कुछ अगर किसी ने स्टील किया भी होगा तो वो वहीं पे पकड़ में आ जाएगा, राइट. तो ये सस्पेक्ट करने का फिर पूरा प्रोसेस होगा ही नहीं. तो इसमें एम्प्लॉयर्स भी दे विल बी एट पीस, एंड इवन दीज हाउस हेल्प्स, डोमेस्टिक हेल्प, राइट, इनके ऊपर भी, सबके ऊपर ऐसा क्वेश्चनेबल कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो डेली अगर चेक होगा दैट्स वेरी गुड. रेगुलरली अगर होगा तो
अभी और क्या ऑप्शन है? करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल डोमेस्टिक वर्कर्स शुड बी सबमिटेड टू द हाउसिंग सोसाइटी। यस, बट क्या ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है? अगर आपको पता भी है कि आपके हाउस हेल्प का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, एड्रेस क्या है, but probably by the time you realize that something is stolen, you reach out to that person, the person has already disappeared, or maybe the article that you're going after, which is let's say precious, right? And maybe like there's something you don't get the article back, right? They probably like gotten rid of it somehow, उन्होंने कहीं बेच भी दिया होगा उस चीज को। तो अगर आपको एड्रेस पता भी है तो उससे थेफ्ट वो मिनिमाइज नहीं होता ना आपका शक, ठीक है, वो मिनिमाइज नहीं होता। ये तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन है कि ये होना ही चाहिए एज सेफ्टी चेक। अब देखते हैं, if there is suspicion of theft, the security guards will first conduct a thorough search of the affected house. अभी सिक्योरिटी गार्ड्स इवन इफ दे कंडक्ट अ थोरो सर्च, आपका कैसे मिनिमाइज होता है सस्पिशन अपने डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर? ये तो नहीं होता ना। है एक कोर्स ऑफ एक्शन है दैट कि अगर किसी को लगता है कि हुई है कोई चीज मेरी चोरी हुई है, तो पहले सिक्योरिटी गार्ड दे आर गोइंग टू कम एंड चेक द अफेक्टेड हाउस। बट इससे आपका शक कैसे मिनिमाइज होता है? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? दैट वी हैव टू मिनिमाइज द चांस ऑफ एम्प्लॉयर सस्पेक्टिंग देयर डोमेस्टिक हेल्प। ठीक है, ये तभी होगा ना जब चेकिंग होगी, जब तसल्ली होगी कि अच्छा आज ये मेरे घर आए थे और जब ये घर से जा रहे हैं तो इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनके पास नहीं होनी चाहिए, जो इनकी नहीं है। बस खत्म, शक तो खत्म हो गया। तो ये तो अच्छा चॉइस है ए। बस हम लोग एक चेक कर रहे हैं कि और कुछ है क्या। When a domestic worker is terminated on suspicion of theft without proof, they'll have to be paid at least 1 month's salary in full. ये तो डैमेज कंट्रोल है कि अगर मैंने कर भी दिया किसी को ब्लेम ना और बाद में ये प्रूव होता है, जैसे जैसे विमला के केस में हुआ, तो 1 मंथ की सैलरी उन्हें मिलेगी, ठीक है, बट ये तो डैमेज कंट्रोल हुआ ना, डैमेज इज ऑलरेडी डन, आर्टिकल इज लॉस्ट, यू हैव क्रिएटेड अ रकस। उसके ऊपर मे बी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के आपको लाइक यू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, रेपरकशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। सिर्फ आप नहीं निकालोगे ना उनको काम पे, जैसे ये बात आगे बढ़ेगी काफी सारे लोगों ने काम से निकाल देंगे। सो यू आर बेसिकली जेपरडाइजिंग अ पर्सन्स एंटायर वर्क ट्रेजेक्ट्री। तो उसके लिए ये 1 मंथ की सैलरी लेटर, आई डोंट थिंक इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और आपका शक तो वहीं के वहीं है, आप तो फिर भी डोमेस्टिक हेल्प को शक ही कर रहे हो, तो ये तो नहीं है ना आंसर। डेली लाइफ सिचुएशंस हैं, आराम से पढ़ोगे समझ में आएगा। When a domestic worker is terminated on suspicion of theft, the employer will have to publicly apologize. इसे क्या होगा पब्लिक अपॉलॉजी से? if the domestic workers can prove their innocence. ठीक है, ये तो आप इसलिए करते हो ना, दिस इज नोन एज ईगो कंट्रोल, ठीक है, कि अच्छा यू सस्पेक्टेड मी ऑन द बेसिस ऑफ थेफ्ट, अब आप सबके सामने मुझसे माफी मांगो, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? प्रॉब्लम क्या थी कि अब हम नहीं शक करना है हमें। डोमेस्टिक हेल्प्स आर आल्सो टायर्ड कि कुछ भी चोरी होता है हमारे ऊपर ही शक आता है। तो पहला जो ऑप्शन है ना वो दोनों के लिए सही है कि अच्छा चेकिंग होगा, सबकी चेकिंग होगी, अगर आपने कुछ भी नहीं चुराया वेरी गुड, और अगर कुछ चोरी हुई तो वहीं के वहीं वो चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो पता लग जाएगा। तो ऑप्शन ए बेस्ट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बेस्ट एड्रेसेस द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस कुछ फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन है, कुछ तो इररिलेवेंट ही है कि चलो माफी मंगवाएंगे, चलो 1 मंथ की सैलरी देंगे, तो बात की बात है, ठीक है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए बेस्ट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट था, एकदम डेली लाइफ वाला सेट था। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डिसीजन मेकिंग में। अगर आप इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल माइंडसेट से सोच सको, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली, कम से कम 4 सेट आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो आउट ऑफ 7। अच्छे से अच्छा सेट्स मिल जाएंगे जो लेंदी भी नहीं होते, इजी भी होते हैं, ठीक है। सो यू गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल कीप पोस्टिंग मोर वीडियोस सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब। मैंने सेड इट आज के वीडियो में, मैं पहले बोल रही हूँ, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर so that we share your support. That's it. Okay, and let's meet in the next one. Thank you so much.